Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today date is 17 December and I am teaching you chapter number 21 and the name of the chapter is The Story of Fire. The Story of Fire. So student, let's do little recapitulation what we done in our previous video. So student, in the previous video I explained you that the early human beings, or we can say early man, totally depend on the nature for the survival. The early human being are totally depend on nature for the survival. So student, the early man live like animals in the forest. So the early man also live like the animals in the forest, and early man, they move from one place to another in search of food and shelter like the animals. So, and at that time, the early human beings, we know that when we are talking about the living organism, it is divided into three categories, that is plants, animals and human beings. So we all need energy to perform various type of works in our day-to-day life. And how this is possible? From where we get the energy? From where we get the energy to do work? So answer is the food which we eat. We get the energy to do the work from the food that we eat. Is it clear? And for this food we are totally depend on plants, directly or indirectly. Reason, plants are the only producers. They can only produce their own food. So these things, let's do little recapitulation and quick capitulation what we have done in the previous video. So maybe the early human beings, they are hunting animals also. They are hunting animals also.
for the food, and the most important thing is that student, they are eating the things raw vegetable, raw food products, and even they hunt the animals and eat their flesh, because at that time discovery of fire has not taken place. उस समय तक अभी फायर की डिस्कवरी जो है बेटा वो नहीं हुई थी. ओके, सो discovery of fire was not at that time. So even at that time early human beings, they don't wear cloth. So what they wear, he used to wear the skin of animals. He used to wear the skin of animals. Now discovery of fire. तो देखो बेटा फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके कोई एकदम परमानेंट या एकदम फिक्स क्लूज नहीं है. ऐसा हमने एक इमेजिन किया है. कभी कभी फॉरेस्ट में भी एक्सीडेंटल्स फायर लग जाती है. व्हेन द टू पीसेस रब और वुड, even due to the spark is produced, and when these spark fall on the dry leaves, it may catch fire. So discovery of fire, it changed the life of the early human being. With the discovery of fire, it changed the life of the early human being. Maybe sometime it happens that by accidentally the forest, there is a fire in the forest. क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स ने मैक्सिमम चीजें ऑब्जर्व कर करके सीखी थी. ठीक है, तो एक्सीडेंटली मे बी देयर इज ए फायर इन द जंगल, एंड व्हाट डज द अर्ली मैन ऑब्जर्व? He observed that all animals are afraid of fire. उसने ऑब्जर्व किया जितने भी एनिमल्स हैं they are afraid of fire. So they are running from the fire. So at that time early man observed that because he is also living like a animals in the forest, and he is also afraid of the wild animals which are carnivorous animals which kill other animals and eat the flesh of that animals. But when early man observed that all the animals are afraid of fire and running from the forest fire, then what one thing come in its mind, तब उसे लगा होगा, हो सकता है बेटा ऐसा कि ये जो फायर है ये तो बहुत काम की चीज है, सब इससे डर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग नहीं डरा होगा, डरा वो भी होगा. सो अब उनके दिमाग में ये बात आई कि ये जो फायर है ना बहुत अच्छी चीज है, सारे एनिमल इससे अफ्रेड हैं, भाग रहे हैं. सो बट he did not know how to make or how to produce a fire. ठीक है, अर्ली मैन ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑल द एनिमल्स आर रनिंग फ्रॉम द फायर, सब कुछ हो गया. बट अभी एट दैट टाइम द अर्ली मैन डोंट हैव आइडिया हाउ टू प्रोड्यूस अ फायर. सो वी जस्ट इमेजिन, या ऐसा हम लोग होप करते हैं. एट इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू दैट अर्ली मैन
early man kill the animals and eat the flesh. ठीक है। अब देखो मैंने आप लोग को बोला जब अचानक अर्ली मैन ने हो सकता है कभी देखा हो तो उसे बड़ा अच्छा लगा होगा कि ये फायर क्या, इट इज ऑफ वेरी यूजफुल थिंग, बट एट दैट टाइम मे बी ही डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस ए फायर, लेकिन उसे पता नहीं था कि फायर को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, होपफुली ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि एट दैट टाइम देर इज नो वन टू टेल अस। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं कि उस पास्ट टाइम में ऐसा हुआ होगा। ठीक है, देखो आज के टाइम में हमारे पास पास्ट की बहुत सी हिस्ट्रीज हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई थी तो उस समय जितनी भी चीजें थी, लोग अर्ली ह्यूमन बींग्स ही आए फर्स्ट टाइम पे अर्थ पे, तो दे ऑल आर लर्निंग, because what are the things present in the nature or in the surrounding, they all are not aware of that things. ठीक है, सो स्टूडेंट अब क्या हुआ, मे बी ऐसा हम होप करते हैं कि हाउ द अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्न टू प्रोड्यूस फायर, ऐसा हम लोग होप करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा तो अर्ली ह्यूमन बींग्स को फायर कैसे प्रोड्यूस करनी है ये पता चला होगा। तो इस छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। इन द बिगनिंग वी टॉक दैट द अर्ली ह्यूमन बींग्स ईट द प्लांट्स प्रोडक्ट आल्सो एंड इवन एट द सेम टाइम दे हंटेड एनिमल्स, इट मीन्स दे किल द एनिमल्स एंड ईट द फ्लैश। इसका मतलब वो एनिमल्स को किल करते थे और उसकी फ्लैश को, जो उसका मांस होता था, उसे कच्चा ही खाते थे। ठीक है, सो देयर आई ऑल्सो डिस्कस विद यू दैट व्हाट वाज द अर्ली टूल्स ऑफ द अर्ली मैन। टूल्स क्या, वो लोग टूल हथियार क्या यूज करते थे, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो क्या टूल्स होते हैं आपके, पेंसिल, पेंसिल से आप लिखते हो, सीनियर क्लासेस में हो तो पेन से लिखते हो, रबड़ चाहिए, शार्पनर चाहिए, बॉक्स चाहिए, यही सब टूल्स हैं। इन द सेम मैनर एट द पास्ट टाइम व्हाट आर द, क्योंकि उस समय अर्ली ह्यूमन बींग्स को मेटल्स की भी नॉलेज नहीं थी। व्हाट आर द मेटल, मेटल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। जैसे आप लोग आज के प्रेजेंट टाइम में देखते हो आयरन है, स्टील, स्टेनलेस स्टील है, एल्युमिनियम है, there are different types of metals present in the nature, but at that time early human beings they don't have any knowledge about the metals. Okay, so what, how he killed the animals, his tools are stone, जो पत्थर होते थे ना उनको ये शार्प करते थे, पत्थरों को आपस में रगड़ रगड़ के उनको शार्प बनाते थे, जिससे वो एनिमल्स को क्या करें, किल कर सकें। इज इट क्लियर? सो दीज आर द अर्ली टूल। तो मे बी ऐसा हम लोग होप करते हैं कि मे बी अर्ली मैन स्टोन को शार्प कर रहा हो, क्योंकि उस स्टोन से वो क्या करता था, एनिमल्स को किल करता था। तो मे बी ऐसा हुआ हो, वो शार्प कर रहा होगा, एंड व्हेन ही इज रबिंग द स्टोन्स विद ईच अदर सम स्पार्क इज प्रोड्यूस, कुछ स्पार्क प्रोड्यूस हुई होगी, और वहां अगल बगल सूखे पत्ते हो, ड्राई लीव्स हो, क्योंकि जंगल्स में, फॉरेस्ट में बहुत से पेड़ होते हैं। ओके, तो हम ऐसा होपफुली इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मे बी ऐसा हुआ होगा कि अर्ली ह्यूमन बींग्स ने मे बी वो टूल्स बना रहा था, शार्प स्टोन कर रहा था, वो क्या कर रहा होगा, रब कर रहा होगा स्टोन को, तो कुछ स्पार्क फायर की, क्योंकि आप लोग ने देखा है ना, व्हेन वी रब द स्टोन्स तो उसमें से भी स्पार्क निकलती है, आग, चिंगारी निकलती है, और मे बी ऐसा हुआ होगा दैट स्पार्क फॉल ऑन द ड्राई लीव्स, और वहां आग लग गई होगी। तब हो सकता है अर्ली ह्यूमन बींग्स को समझ में आ गया होगा
कि हाउ दे विल प्रोड्यूस द फायर। सो वहां से अर्ली ह्यूमन बींग्स को हो सकता है ये समझ में आ गया होगा कि हाउ डू दे प्रोड्यूस द फायर विद द हेल्प ऑफ द स्टोन। ठीक है, अब फायर कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये अर्ली मैन ह्यूमन बींग्स को आ गया बाई रबिंग द स्टोन्स। नाउ ही हिमसेल्फ कुड लाइट फायर, अब उसे खुद से फायर लाइट करने आ गया। एज ईयर पास बाई अर्ली मैन लर्न दैट बाई रबिंग टू फ्लिंट स्टोन्स और वुड ही कुड प्रोड्यूस फायर। जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो अब अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये थिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई थी कि हाउ दे कैन प्रोड्यूस द फायर बाई रबिंग the stone or by rubbing the wood also they can produce the fire. So in this manner the discovery of fire changed the life of the human beings, early human beings. क्योंकि मैंने पहले भी चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था कि इन द बिगनिंग the human beings move from one place to another in search of food because at that time they don't know how to do cultivation, crops grow करना नहीं आती थी उन्हें। but a lot of change come in the life of the early human beings when they learn how to grow the crops in the field. It changed the life of the early human beings. Now after they know how to do the cultivation in the fields, the early human beings life become settled. जब उनको कल्टीवेशन करना आ गया था बेटा तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ क्या हो गई थी, बहुत ही सेटल हो गई है ना, उनकी लाइफ सेटल हो गई थी। सो दे स्टार्ट लिविंग ऑन द सेम प्लेस, एक प्लेस पे वो रहने लगे। क्योंकि पहले क्यों वो इधर उधर जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड। अब जब उनको फूड ग्रो करने आ गया देयर लाइफ बिकम सेटल एंड आफ्टर दैट विद द डिस्कवरी ऑफ द फायर इट आल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स। बिकॉज बाई चांस वो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था जंगल में जो फायर लग गई बाई एक्सीडेंटली, बाई चांस इट हैपन्स, हो गया होगा बहुत से जानवर जल गए होंगे उसमें, रोस्टेड हो गए। तो मे बी अर्ली ह्यूमन बीइंग भाई वो भी तो जंगल में ही घूमता था, तब उसको खाने को हो सकता है कुछ ना मिल रहा हो, बहुत से ग्रीन पेड्स जल गए होंगे, तो हो सकता है भाई बहुत भूख लगी होगी, उसने किसी जले हुए जानवर को खाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो फूड उसको बहुत टेस्टी लगा होगा, क्योंकि रोस्टेड फूड भी बहुत टेस्टी होता है। तो हो सकता है वहाँ से अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये दिमाग में नॉलेज आई होगी या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम फायर से चीज़ों को कुक करते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, तो चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाती हैं और दे बिकम आल्सो वेरी टेस्टी। द थिंग्स बिकम वेरी soft also and they are very tasty to eat. So how they learn? They learn by their own. ठीक है, अब फायर की डिस्कवरी फॉर एग्जाम्पल जब कल्टीवेशन करने आ गई थी अर्ली ह्यूमन बींग्स को, देन द सेकेंड प्रॉब्लम अराइजेस इन फ्रंट ऑफ द अर्ली मैन इज दैट वेयर दे विल केप्ट द ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब होता है अनाज। वेयर दे विल केप्ट द ग्रेन्स विच दे हैव ग्रोन इन द फील्ड। तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए थे। तो ये जो मिट्टी के स्टार्टिंग में उसने बर्तन बनाना स्टार्ट किए थे, दीज आर वेरी, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो बाई चांस कभी हुआ होगा ऐसा उसने कोई मिट्टी का, भाई क्योंकि उसको ग्रेन्स रखने के लिए कंटेनर चाहिए थे जिसमें वो अपने अनाज को रख सके। अनाज को आप डायरेक्ट सॉइल में नहीं रख सकते हो, नहीं तो सार क्यों, वो क्या है, सीड है। जितने भी अनाज हैं बेटा ये सीड होते हैं और हम लोग और इन्हें क्या बोलते हैं, ईटेबल सीड्स। इट मीन्स वी कैन ईट दिस सीड्स, तो इसे इसलिए हम लोग ईटेबल सीड्स बोलते हैं।
सो स्टूडेंट, तो मे बी उसने कभी कोई मिट्टी का बर्तन बनाया हो और वो बर्तन गलती से उसने आग जलाई हो, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ फायर तो हो गई थी। अब जब वो केव्स में रहता था फॉरेस्ट में, तो वो हमेशा अपने पहले केव्स में रहता था, फिर भी उसे डर लगता था, क्योंकि केव्स में जंगली जानवर भी आ सकते हैं। लेकिन अब उसने जंगल वाले उससे उसे पता चल गया था कि ऑल द एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ द, सब एनिमल्स किससे अफ्रेड होते हैं? फायर से। तो अब वो जब केव्स में रहता था, देन ही वॉज नॉट वेरी मच अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या करता था, अपने गुफा के चारों तरफ आग जला लेता था, क्योंकि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी आग जलती है तो वहां कोई भी एनिमल नहीं आता है। जब भी आग जलती है तो वहां कोई भी एनिमल नहीं आता है। ये चीज उसने ऑब्जर्व की थी अर्ली ह्यूमन बींग्स ने। तो स्टूडेंट यही है। अब देखो, अब हो सकता है बाई चांस कभी उसने कोई मिट्टी का बर्तन बनाया और गलती से रहने दिया होगा आग के बगल में, और व्हेन दैट पॉट बर्न इन द फायर इट बिकम वेरी हार्ड। तो यहां से अर्ली ह्यूमन बींग्स को एक और कॉन्सेप्ट मिल गया कि फायर इज वेरी गुड थिंग। फायर में अगर मिट्टी जो है, मिट्टी के जो बर्तन है, उनको अगर बर्न कर दिया जाए, बेक किया जाए, तो वो हार्ड और स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि उस समय बेटा व्हील का भी इन्वेंशन हो चुका था, एंड विद द हेल्प ऑफ द पॉटर व्हील। पॉटर व्हील इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पॉट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन। सो विद द हेल्प ऑफ ए पॉटर व्हील द अर्ली मैन मेक डिफरेंट शेप्स ऑफ पॉट्स। He made pots of different shape with the help of the wheel, and after making this pot he burned this pot in the fire so that this pot become stronger, जिससे कि ये पॉट क्या हो जाए बेटा, ये पॉट बहुत मजबूत बन जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। नाउ तो ये सब हुआ होगा। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प मैन इन मेनी वेज। अब ये पॉइंट्स हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सी स्टूडेंट, द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प्ड discovery of fire helped man in many ways. The discovery of fire helped man in many ways. So the discovery of fire helped man in many ways. First point है, what was the first point? Fire kept him warm. Fire kept him warm in cold weather.
अर्ली ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट में ही रहा करते थे. सो एट द टाइम ऑफ विंटर द वेदर इज वेरी कोल्ड. At that time the weather is very cold. So fire kept him warm in cold weather. अभी जैसे देखो बेटा विंटर का समय आ गया है, अगर बहुत ठंड होती है एंड वी बर्न द वुड, ठीक है, ठंड के समय अगर हम लोग वुड को बर्न करते हैं एंड सो एट दैट टाइम दैट फायर कीप आवर बॉडी वार्म. ठीक है. अब तो बहुत ज़्यादा देखो, अब एट प्रेजेंट टाइम में तो लोगों ने घर में हीटर्स रख लिए हैं, ब्लोअर रख लिए हैं फॉर सो डैट दे वार्म देयर हाउस. लेकिन ओल्ड टाइम में मैक्सिमम जब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, एडवांस चीज़ें, तो लोग विंटर डेज में वुड को ही बर्न करते थे. इज इट क्लियर? सो व्हेन दे burn the wood it produce fire and these keep us warm at the time of cold. कोल्ड के समय ये चीजें हमें क्या रखती थी? वार्म रखती थी एट द टाइम ऑफ द कोल्ड वेदर. सेकेंड, फायर helped to light, fire helped to light up his cave or hut at night. अब क्या है? फायर, वी नो दैट द अर्ली मैन they are living in the forest and where they are living in the caves. so देखो आज क्या है, आज हमारे हाउसेस में इन द नाइट द थिंग्स, इवन द थिंग्स आर नॉट विजिबल टू अस, बट आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में देयर इज ड्यू टू एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी we have make our life very easier and comfortable. In the houses we have lot of electrical appliances. There is tube light or CFL bulb. So these are the things by which we get enough light. ठीक है, तो इन चीज़ों से लाइट हमें मिलती है, बट ओल्ड टाइम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. सो एट दैट टाइम देखो, जब फायर जलाते हैं, जब आग जलाते हो बेटा, जैसे अभी दीपावली आई थी, जब आप लोग दिए जलाते हो तो इट प्रोड्यूस लाइट ना. ठीक है. और आप लोग अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछना, पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी भी जब डिस्कवर नहीं हुई थी, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो दिन में तो नेचुरल लाइट हुआ करती थी जिसको हम लोग कहते हैं सनलाइट. ठीक है, जो नेचुरल लाइट तो हुआ करती थी जिसे हम लोग सनलाइट बोलते हैं. बट इन द नाइट में कोई पोल, इलेक्ट्रिक पोल नहीं थे. सोचो, इमेजिन करो, एक समय ऐसा भी था व्हेन नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेजेस. तो लोग, हाउ द पीपल, व्हाट दे डू एट द नाइट. तो नाइट में ये जो आप कह रहे हैं ना, फायर हेल्प टू लाइट अप इज लाइट, फायर से लाइट मिलती है ना. सो बहुत से ऐसे विलेजेस थे जहां पे लोग दिए जला के रहते थे, क्योंकि डे में तो सनलाइट होती थी और नाइट में इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं था. इज इट क्लियर? ये तो ठीक है. तो इन द सेम मैनर व्हेन द अर्ली मैन लिविंग इन द केव्स, सो हाउ ही लाइट हिज केव with the help of the fire. ठीक है, early man live in the caves. So at that time, how the early man light the caves? So the early man, fire helped to light up his cave or hut at night. Okay, thank you student.